Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So today we are discussing about semiconductor RAM memories. Semiconductor means semiconductor is a material through which this RAM memories are made up of. Okay. Semiconductor RAM memories, RAM, read-write memory, scratch pad memory और main memory सब एक ही हैं. Okay. Semiconductor RAM, read-write memory. This RW means read-write और scratch pad memory. इसका मतलब यही एक टॉपिक है जिसके बारे में बात की जा रही है. Semiconductor RAM refers to the semiconductor IC. Semiconductor means वो material जिससे ये IC या RAM chip बनी हुई है. That is the material basically semiconductor. Okay. That can be used in read mode as well as in write mode. RAM है random access memory. इसमें आप लिख भी सकते हैं और read भी कर सकते हैं. It can be write, it can be read. Okay. So यहाँ पर आप both operations simultaneously perform कर सकते हैं read and write. It uses either a read cycle or a write cycle. Either, not together. It's either, not together. It means या तो वो read कर रहा होगा या write कर रहा होगा. One operation at a time. Okay, depending on the type of request. किस तरह का डेटा रिक्वेस्ट किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रीड कर रहे हैं या राइट कर रहा है. रीड साइकिल हैज शॉर्टर टाइम देन राइट साइकिल. ऑलवेज रिमेंबर जो रीड ऑपरेशन है उसको एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लगता है रादर देन राइट. अगर आप नॉर्मल देखते हैं वो चीज़ आप लिख रहे हैं तो लिखने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा बजाय उसको पढ़ने के. ओके. सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट. नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट मीन्स उसमें से जो डेटा रीड किया गया है वो वैनिश नहीं होता अनटिल अनलेस वहाँ पर पावर रहे. ओके. एंड वॉलेटाइल मेमोरी. वॉलेटाइल का मतलब क्या है? जब तक पावर है तब तक डेटा है, पावर खत्म डेटा खत्म. वो लाइव ही नहीं होगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा. जैसे पावर ऑफ करेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी से तो वो डेड मेमोरी हो जाएगी, उसमें कोई डेटा या कुछ लाइव नहीं रहेगा. ओके. नो डिफरेंस देख लेते हैं एक बार नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड वॉलेटाइल का क्या मतलब है. नॉन डिस्ट्रक्टिव मीन्स डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय प्रोसीजर यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी सेल. एज आई टोल्ड यू, डेटा रीड करने के बाद डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खत्म नहीं होगा. डेटा विल बी देयर. डेटा वहीं रहेगा. डेटा वहीं रहेगा. द थिंग इज कि डेटा आपने रीड किया है उसके बाद कोई प्रोसीजर उस डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. डेटा विल बी देयर. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मीन्स जब तक पावर सप्लाई है, जब तक पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उस सेमीकंडक्टर मेमोरी के पास, तब तक तो वो लाइव रहेगा, डेटा को स्टोर करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा. बट वंस द पावर विल बी switched off, then that memory will not contain anything. Then it will automatically become blank. Now see, volatile means it requires electrical power to maintain storage. For this reason, UPS and battery backup systems are used in semiconductor memory to maintain constant power. Okay, clear to everyone? Now, what is the meaning of RAM? RAM stands for random access memory. RAM stands for random access memory. The meaning random access memory is it states that you can randomly access any location. There is no provision of sequential reading. Means अगर आपको 10th लोकेशन रीड करनी है आप डायरेक्टली 10th लोकेशन पर जंप करके 10th लोकेशन का डेटा रीड कर सकते हो. सिमिलरली 100 लोकेशन है, 500 लोकेशन है या 1000 लोकेशन है, किसी भी लोकेशन पर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो. ये होता है रैंडम एक्सेस. सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होगा? यू हैव टू गो थ्रू
1 to 100 or 1 to 10 or 1 to 500 to access the 500 means अगर आपको लोकेशन नंबर 500 एक्सेस करनी है, इट मीन्स क्या होगा, अगर सीक्वेंशियल है तो आप 1 2 3 4 करते हुए 500 तक जाएंगे, फिर 500 को आप रीड करेंगे। बट रैंडम एक्सेस है तो आप डायरेक्टली 500 पर जंप करेंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे। क्लियर? अगर एग्जांपल देखा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जांपल हो सकता है, जो रैंडम एक्सेस होता है बेसिकली दैट इज अ सीडी ड्राइव, सीडी रोम। ओके, पेन ड्राइव में जो डेटा होता है वो रैंडमली एक्सेस हो जाता है। 10 फाइल हैं, आप रैंडमली किसी भी फाइल को प्ले कर सकते हैं। सीक्वेंशियल की बात करें अगर हम, तो ऑडियो कैसेट यानी कि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क वो सीक्वेंशियल का एग्जांपल हैं। एरे, एरे में जो डेटा स्टोर करते हैं वो भी सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर करते हैं। सीक्वेंशियल क्यों होता है? बिकॉज अगर आपको लाइक ऑडियो कैसेट पे 10th ट्रैक या 10th सॉन्ग प्ले करना है, यू नीड टू डू व्हाट, आपको पहले 9 सॉन्ग फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, तभी आप 10th पर जाओगे। ओके, आप डायरेक्टली 10th पर रेंडमली जंप नहीं कर सकते, बट इन सीडी, इन पेन ड्राइव, इन रैम, you can directly jump to the desired location. Clear to everyone? Now next is the term RAM. Term RAM. RAM का मतलब क्या होता है? RAM is not used for read only memory. आपने रैम रोम ये दो वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली साथ में बोले होंगे, बट रैम का मतलब रोम नहीं होता। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज अनदर काइंड ऑफ मेमोरी, बट इट इज पॉसिबल दैट रोम इज ऑल्सो अ रैंडम एक्सेस। मैंने मेमोरी नहीं बोला है, ध्यान रखिए, मतलब क्या, मैं हिंदी में समझाता हूं आपको। रैम जो होती है वो एक अलग टाइप की मेमोरी होती है, रोम अलग टाइप की मेमोरी होती है। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। दोनों अलग अलग कैटेगरी होती हैं। हाँ, ये पॉसिबल है कि जो रोम है उसमें भी आप डेटा को रेंडमली रीड कर सकते हो, बट अगर रोम में से आप डेटा को रेंडमली रीड कर रहे हो तो रेंडमली रीड करने की वजह से वो रैम नहीं बनेगी, वो फिर भी रोम ही रहेगी। क्लियर हुआ? रोम का क्या काम होता है? रोम में आपने डाटा एक बार लिख दिया तो वो लिखा ही रहेगा, वो हटाया नहीं जा सकता। रोम की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, रीड ओनली मेमोरी। वंस डेटा क्रिएटेड विल नेवर गेट डिस्ट्रॉयड। इट इज अ नॉन वॉलेटाइल काइंड ऑफ मेमोरी। पावर रहे ना रहे उसमें डेटा रहेगा। जैसे सीडी, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसको पूरा हम सीडी रोम बोलते हैं। आपने एक बार सीडी के अंदर कुछ राइट कर दिया, कोई मूवी, कोई फिल्म, कोई ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, कुछ भी आपने उसके अंदर एक बार बना दिया पेन ड्राइव, उसके अंदर सीडी में या पेन ड्राइव में, उसके बाद आपने उसको कंप्यूटर से हटा लिया, कोई पावर सप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है, आपने उसको रखा, 2 महीने के बाद आपने उसको सीडी को या पेन ड्राइव को रीड किया, वो रीड हो जाएगी। ओके, उसको किसी पावर की जरूरत ही नहीं है। वंस द डेटा क्रिएटेड, वंस द डेटा स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर मेमोरी कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी, देन दैट memory will never get destroyed, that data can never get destroyed due to power failure, कि पावर नहीं है तो डेटा जो है लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नोन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, नाउ I have just mentioned a question example here. Pen drive. Is pen drive ROM or RAM or something else? Is pen drive ROM, RAM or something else? Try to answer. There are two types of RAM: SRAM, DRAM, static RAM or dynamic RAM. Static RAM and dynamic RAM. Static RAM और dynamic RAM का difference क्या होता है? Static RAM is faster than dynamic RAM. It requires more logic. Does not use to be refresh. इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है स्टैटिक रैम को। मोर एक्सपेंसिव एंड बिट और डेटा इज स्टोर्ड एज वोल्टेज इन फ्लिप फ्लॉप। वोल्टेज की तरह से डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे वोल्टेज स्टोर होती है ऐसे डेटा स्टोर होता है। इन केस ऑफ डायनेमिक रैम इसके डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो डिफरेंसेस इसके नोट डाउन करिएगा जरूर। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन एस रैम डी रैम। डायनेमिक रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम इज स्लोअर देन स्टैटिक रैम। इट रिक्वायर्स लेस लॉजिक, बिल्कुल जस्ट इसका रिवर्स है। लेस एक्सपेंसिव, डायनेमिक रैम इज लेस एक्सपेंसिव देन स्टैटिक रैम, एंड द डेटा और बिट इज स्टोर्ड इन
द फॉर्म ऑफ चार्ज एज इन मॉसफेट। ओके, मॉसफेट क्या होता है? मॉसफेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर जैसे चार्ज स्टोर करते हैं कैपेसिटर की तरह, कैपेसिटर में भी चार्ज स्टोर करते हैं, मॉसफेट में भी चार्ज स्टोर करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है। ओके, डायनेमिक रैम रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग, इट रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग। ओके, रिफ्रेशिंग मीन्स थोड़ी थोड़ी देर के बाद डायनेमिक रैम को क्लियर करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी वो डेटा को नेक्स्ट को आगे प्रोसेस करता है। रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। ओके, क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, वन इज एमरैम। एमरैम का मतलब क्या होता है? मैग्नेटो रेजिस्टिव, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम, मैग्नेटिक इफेक्ट से इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, दैट इज मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी मीन्स डबल ई प्रोम, डबल ई प्रोम मीन्स योर पेन ड्राइव, your pen drive is double EEPROM, electrically erasable programmable read only memory, electrically erasable programmable read only memory। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मीन्स आप पेन ड्राइव पर फॉर्मेट का जब ऑप्शन आता है, क्लिक करते हो, वो एक सडनली एक हाई चार्ज पेन ड्राइव में पास करते हैं, उस हाई चार्ज की वजह से पेन ड्राइव क्लीन हो जाती है। आप देखते होंगे जब भी आप पेन ड्राइव में कुछ रीड करते हैं, राइट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, पेन ड्राइव गर्म होने लगती है। हीटिंग का क्या काम है वहां पे? हीट किसके साथ आती है? अगर आपको बेसिक फिजिक्स प्रिंसिपल्स 11th-12th के ध्यान हो तो करंट के साथ साथ हीट भी ट्रेवल करती है। ओके, जैसे ही करंट या वोल्टेज आपकी पेन ड्राइव में से पास करेगा तो वहां पे हीट भी पास करेगा, तो उस हीट की वजह से पेन ड्राइव गर्म होने लगती है। ओके, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मींस इलेक्ट्रिसिटी से इसको इरेज कर सकते हैं। अनदर काइंड ऑफ इरेजिंग टेक्नोलॉजी इज देयर दैट इज नोन एज यूवी प्रोम, ये डबल ई प्रोम है, उसको बोलते हैं यूवी प्रोम, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायलेट। तो उस केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से इरेज होती है, वो अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज करते हैं। ओके, एंड थर्ड टाइप इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम आर, रैम इज रीड राइट मेमोरी, रैम में आप लिख भी सकते हो, रैम में आप रीड भी कर सकते हो, वेयर एज इन केस ऑफ रोम इट इज ओनली रीड ओनली मेमोरी, आप सिर्फ रीड कर सकते हो। बिकॉज वंस द रोम इज क्रिएटेड, जब रोम बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, या तो उसको तभी लिखा जाता है, उसी के अंदर डेटा वहीं लिख देते हैं, या फिर वो प्रोग्रामेबल मेमोरी छोड़ देते हैं, तो जब एक बार प्रोग्राम लिख दिया तो हो गया। उसके बाद एडवांस लेवल पर अगर हम आते हैं, रोम में एडवांस लेवल की बात करते हैं, इन दैट केस आपके पास ई प्रोम, डबल ई प्रोम, यूवी प्रोम आनी शुरू होती है। ओके, बट इनिशियली इट वाज ओनली द रोम। ओके, एंड बोथ आर रैंडम एक्सेस, दोनों को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, सीक्वेंशियल एक्सेस की जरूरत नहीं है। ओके, main memory in computer system has two parts, main memory in computer system has two parts, first is ram, second is rom, first is ram, second is rom। ram for current execution, जितना भी काम आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद कर रहा है वो सारा का सारा रैम में हो रहा है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का जो काम है वो रोम करेगा। ओके, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा तो रैम चलेगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम कौन करेगा? रोम। ओके, रोम में बूटस्ट्रैप लोडर लिखा जाता है, बूटस्ट्रैप लोडर, बूटस्ट्रैप लोडर क्या करता है, जो बूट प्रोसेस होता है, ठीक है, जब आप कहते हो ना कंप्यूटर को बूट करना है, सिस्टम रीस्टार्ट करना है, ओके, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। बूट करने का मतलब क्या होता है? विंडोज फाइल को जीरो से लेकर इनिशियलाइज करते हैं। रीबूट, रीबूट मींस जीरो, कंप्लीट शटडाउन, देन अगेन जो आप उसको मेमोरी पर लोड करोगे। ओके, बूटस्ट्रैप लोडर का क्या काम होता है समझिए, इट इज अ प्रोग्राम हुज फंक्शन इज टू स्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम होता है बूटस्ट्रैप लोडर का। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें जो है मेमोरी पर डालना है, कब? जैसे ही पावर ऑन होती है। आपके नॉलेज के लिए बताता हूं, बूट प्रोसेस, बी डबल ओ टी, बूट, बूट प्रोसेस इज नॉट द फर्स्ट प्रोसेस।
आप जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, कोई भी जो है डिवाइस ये वाली, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, वर्जन आज का लेटेस्ट हो, 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, तो किसी भी कंप्यूटर में बूट बूट प्रोसेस सबसे पहले प्रोसेस नहीं नहीं आता। ओके, बूट से पहले भी बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं, बूट से पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस चेक होते हैं। द फर्स्ट वन इज बायोस, BIOS, बायोस। द फर्स्ट वन, पावर ऑन होते ही सबसे पहले बायोस टेस्ट होती है, उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन चलता है पोस्ट, POST, पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म लिखिए, पावर ऑन, वेरी गुड, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आफ्टर पोस्ट द थर्ड प्रोसेस इज बूट, थर्ड प्रोसेस इज बूट प्रोसेस। नाउ इन केस ऑफ बूट प्रोसेस, अब विंडोज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी पर लोड होता है। क्लियर? बूट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का काम होता है बूटस्ट्रैप लोडर का। बूटस्ट्रैप लोडर का क्या काम होता है? बूट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। इट लोड्स अ पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम डिस्क, डिस्क मींस हार्ड डिस्क, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करके रख दिया है, टू मेन मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब रैम, एंड कंट्रोल इज देन ट्रांसफर टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इनिशियली कंप्यूटर बंद है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल जो है स्लीप मोड में है, हार्ड ड्राइव किसी को पावर नहीं मिल रही, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। जैसे ही आपने पावर दी, कंप्यूटर को पावर सप्लाई कनेक्ट की, पावर सप्लाई कनेक्ट करते ही क्या होगा, बूटस्ट्रैप लोडर एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की नेसेसरी फाइल्स को मेन मेमोरी में लोड करेगा। मेन मेमोरी में लोड करते ही जब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से एग्जीक्यूशन में आएगा तो सारा का सारा कंट्रोल भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर कर देगा और खुद आराम से चुपचाप बैठ जाएगा बूटस्ट्रैप लोडर। अब पूरे कंप्यूटर का जो भी फंक्शन मॉनिटरिंग है वो कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन जब आप इसको शट डाउन करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक करके अपनी सारी फाइल्स बंद करेगा। प्रॉपर शट डाउन करने के लिए वो सारी फाइल्स को उनकी सेफ लोकेशन पर लेके जाएगा एंड देन लास्ट में बंद हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस जो आपका सिस्टम ऑन या ऑफ में यूज होता है। ओके, नाउ दिस इज द मेमोरी हायरार्की, रजिस्टर्स, कैशे, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। मेन मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क के बीच में यहां पर आप ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव लिख सकते हो। ओके, ये बहुत पहले के नोट्स हैं, उस टाइम पर ऑप्टिकल डिस्क और ड्राइव इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो मेन मेमोरी के बाद आप यहाँ इस केस में ऑप्टिकल डिस्क लिख सकते हो, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, देन मैग्नेटिक टेप। ऑप्टिकल डिस्क पहले यहाँ लिखी हुई थी, यहाँ से हटा के आप इसको यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज रैम चिप और रैम मेमोरी। व्हाट इज रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या करता है ये? रीड राइट दोनों काम करता है। उसके अलावा वॉलेटाइल होता है। ठीक है, वॉलेटाइल के अलावा इसको दो तरह में क्लासिफाई किया जाता है, SRAM और DRAM। ओके, नाउ it can be constructed with three state, RAM can be constructed with three state buffer, RAM can be constructed with three state buffer। three state buffer का मतलब क्या होता है? 0 1 and don't care, 0 1 and don't care, तीन तरह की डेटा आप इसमें लिख सकते हो। 1 0 एंड हाई इम्पीडेंस। हाई इम्पीडेंस का मतलब ऑफ, Z लिखते हैं, हाई इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए Z लिखते हैं। थ्री स्टेट बफर में तीन पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, आइदर 1 0 और हाई इम्पीडेंस। हाई इम्पीडेंस मींस Z, उसको हम हाई इम्पीडेंस या हाई रेजिस्टेंस, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस वन एंड द सेम थिंग, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, इसका एक इक्वेशन भी पढ़ा होगा। सो one is for data presence, 0 means another data like absence of data बता सकते हैं, and high impedance means nothing is there, okay, which means open circuit, circuit break है, open circuit है, and output does not carry signal and has no logic significance, कोई काम ही नहीं होगा, ऑफ है, सर्किट ही ऑफ है। ओके, हाई इम्पीडेंस में। Now see this is the block diagram of a RAM chip, block
diagram of a RAM chip. There are two signals CS1, CS2 bar. CS stands for chip select. ध्यान से समझिए, ये जो आपके सामने ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, ये एक आइडियल केस की रैम के लिए ब्लॉक डायग्राम है. ओके, आप कोई एक्स रैम की बात करते हैं, स्पेसिफिक जो मार्केट में अवेलेबल है, अगर उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हो सकता है वो स्ट्रक्चर इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो. एक रैम इस तरीके से होनी चाहिए. ओके, जो सामने ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस मीन्स अ रैम मस्ट बी लाइक दिस. हो सकता है पूरा इसी सेम आर्किटेक्चर को फॉलो करके कोई रैम बनाई गई हो और किसी अलग आर्किटेक्चर को फॉलो करके कोई रैम बनाई गई हो, बट दिस शोज एन आइडियल स्ट्रक्चर. ओके, चिप सेलेक्ट वन, चिप सेलेक्ट टू. वन इज हाई, वन इज लो. लो मीन्स इसके ऊपर बार लिखा हुआ है ना, ये लाइन लगी हुई है, इट मीन्स बार. इसका मतलब जब इस पिन के ऊपर इस पर्टिकुलर सिग्नल को जब तक जीरो नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा. एक्टिव लो सिग्नल इज देयर. एक्टिव लो सिग्नल्स वो होते हैं, एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो. एक्टिव हाई सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स विच वर्क ऑन अ हाई वोल्टेज. जो हाई वोल्टेज पे काम करेंगे, मीन्स जब उनको पॉजिटिव करंट आएगा, पॉजिटिव वोल्टेज आएगी या लॉजिक 1 अप्लाई करोगे तब काम करेंगे. एक्टिव लो सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स विच वर्क ऑन लो वोल्टेज. जब लॉजिक 0 आएगा, ग्राउंड सिग्नल कनेक्ट करोगे या लोअर पार्ट ऑफ वोल्टेज कनेक्ट करोगे तब काम करेंगे वो. ओके, सो CS1 is active high and CS2 is active low. Another one is read write. Now RAM है तो read और write दोनों काम करेगा, इसलिए हमने दोनों सिग्नल लगाए हैं, read write. Now this is AD7. Now the logic is AD7 क्यों लिखा गया है यहाँ पे, उसका रीजन है ये जो कैपेसिटी है रोम की. Now see the capacity is 128. सो 128 आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, किलो, मेगा, गीगा, बिट, बाइट कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट इसको बाइट में ही रीड करेंगे. ओके, इसको बाय डिफॉल्ट बाइट में ही रीड करेंगे. 128 बाइट्स. 128 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 7. 128 is equals to 2 raised to the power 7. So we need 7 bits for addressing. We need 7 bits for addressing. That's why यहाँ पर 7 bit का एड्रेस लिखा गया है और 7 bit की एड्रेस लाइन बनेगी. 7 bit का एड्रेस क्यों लिखा गया है? Because of its capacity. Now if the capacity is 64, यहाँ पर 128 की जगह अगर 64 होता तो 2 raised to power 6 is equals to 64. In that case, this address lines is of 6 bit only. And if this RAM is of 256 bytes, then there will be 8 bit address bus, 8 bit address lines. Clear to everyone? Next is, if this is 2K, listen carefully, if this is 2K, at the place of 128 there is mentioned 2K, means 2 kilobytes. 2 kilobytes. 1 kilo means 2 raised to power 10. 2 means 2 raised to power 1. So how many lines will be there? 1 and 10, 11. So 11 bit address lines will be there in case of 2K. 2K का क्या मतलब हो जाता है? K के लिए 10, 2 के लिए 1, 10 और 1 11, टोटल 11 लाइन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. क्लियर टू एवरीवन? Now what is this 8? This 8 is the size of data bus. जब भी कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके पीछे जो नंबर लिखा होता है ना यहाँ पर, दिस इज द साइज ऑफ डेटा बस, मतलब इतने बिट का डेटा बस लगेगा. 8 लिखा है तो 8 बिट का डेटा बस होगा. यहाँ 12 लिखा हो तो 12 बिट, 16 लिखा हो तो 16 बिट का डेटा बस. डेटा बस का जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ मेंशन होगा. एड्रेस बस आपको इससे कैलकुलेट करना होगा. बाकी ये सारे सिग्नल, चारों सिग्नल एज इट इज रहेंगे. ओके, soon we'll see an example also. ये क्लियर हुआ? Now see this table, function table. CS1 is high, CS2 is low. Remember this. CS1 is high, CS2 is low. High means
0 पे काम करेगा? नहीं करेगा। तो x मीन्स हाई इंपेडेंस, काम ही नहीं कर रहा। CS2 0 पे काम करेगा? हाँ, CS2 काम करेगा, बट ये दोनों ही काम करेंगे तभी तो काम करेगा। CS1 काम नहीं कर रहा, CS2 काम कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा। CS1 0, CS2 1, CS2 will be 1. In that case CS1 भी सिलेक्ट नहीं हुआ, CS2 भी सिलेक्ट नहीं हुआ। जब चिप सेलेक्ट ऑन ही नहीं हुआ, चिप सेलेक्ट ही नहीं हुई, चिप को करंट ही नहीं मिला, तब भी वो काम नहीं करेगा। तो अगेन XX मीन्स हाई इंपेडेंस, कोई काम नहीं होगा। चाहे यहाँ पर रीड राइट पे आप कुछ भी करते रहो, वो चिप से कोई डेटा बाहर नहीं आ रहा। CS1 की वैल्यू 1, CS2 की वैल्यू 0, CS1 की वैल्यू 1, CS2 की वैल्यू 0। हाँ, अब क्या है, CS1 को हाई होना चाहिए था, हाई हो गया, CS2 को लो होना चाहिए था, लो हो गया। अब इन दिस केस इट विल वर्क, इट विल वर्क। नाउ व्हाट, दोनों रीड और राइट दोनों 0 हैं, तो ना हम रीड कर रहे हैं ना हम राइट कर रहे हैं, तो कोई काम नहीं होगा। अगेन हाई इंपेडेंस, इट विल बी 1 0। अगेन रीड 0 राइट 1, मतलब आप राइट कर रहे हो, रैम को इनपुट दिया जा रहा है, रैम पर कुछ लिखा जा रहा है। 1 0, अगेन चिप सेलेक्ट इज वर्किंग। रीड एंड राइट, राइट के ऊपर x लिखा है, मींस कुछ भी, कोई भी वैल्यू हो राइट पे, अगर रीड सिग्नल है तो हम सिर्फ रीड करेंगे, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उस टाइम पर। इफ समवन इज रीडिंग आवर डेटा फ्रॉम रैम, तो यू कैन नॉट मॉडिफाई द डेटा। और रीड करने का मतलब क्या है, रैम से आउटपुट लिया जा रहा है डेटा की, रैम से आउटपुट में डेटा लिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट फर्दर इन केस 1 1 के केस में CS1 तो ऑन है बट CS2 ऑफ हो गया। तो अगेन जब तक दोनों चिप सेलेक्ट काम नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो रैम चिप है काम नहीं करेगा। अगेन हाई इंपेडेंस स्टेट आ जाएगा, इनहिबिट, मतलब कोई भी प्रोसेस काम नहीं करेगा। CS is chip select control input for enabling chip. Availability of more than one control input to select the chip facilitates the decoding of address lines when multiple chips are used. एक से ज़्यादा चिप सेलेक्ट रखने का क्या फ़ायदा है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मेमोरी एक साथ लगी हुई है तो चिप सेलेक्ट के थ्रू आप डिकोडर की हेल्प से ये लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो कि कब कौन सी चिप आपको सेलेक्ट करनी है, कब कौन सी चिप के ऊपर आपको काम करना है। ओके, नाउ ये वही थ्योरी है जो मैंने अभी आपको बताई है। रीड राइट इनपुट्स क्या करेगा, चिप सेलेक्ट क्या करेगा, व्हेन CS1 CS2 0 तब रीड होगा तब राइट होगा। ओके, ये सब वही वैसे ही काम करेगा। क्लियर? नाउ दिस इज द जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो रैम को। 1 बिट, ये 1 बिट है। अगर आपको 128 बिट चाहिए तो उस केस में आपको 128 सर्किट्स बनाने होंगे। ओके, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 बिट स्टोर करता है। ओके, डिजिटल सर्किट है, तो ये उसका लॉजिक डायग्राम है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज, सर चिप कौन सी सेलेक्ट हुई है? so next is ROM memory. Again, as we discussed in RAM, chip select 1, chip select 2. Similarly, both are here, chip select 1, chip select 2. मल्टीप्लाइड 8 है तो 8 बिट की डेटा बस बन गई। 512 है, 512 मीन्स 2 रेज टू द पावर 9, सो 9 बिट का एड्रेस बन गया। ओके, वन मोर सिग्नल विल बी देयर, वन मोर सिग्नल विल बी देयर known as read, one more signal will be there known as read, because यहाँ पर रैम है, सॉरी यहाँ पर रोम है, रोम में आप राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो। ओके, सो आइदर आप इसमें रीड सिग्नल लगा लो, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक चिप सेलेक्ट को चिप सेलेक्ट सिलेक्शन इनपुट के लिए यूज कर लो और दूसरे चिप सेलेक्ट को आप रीड की तरह यूज कर लो। बिकॉज अगर रोम को सेलेक्ट करोगे तो वो सिर्फ रीड करने के लिए ही सेलेक्ट करोगे, राइट के लिए सेलेक्ट नहीं करोगे। तो इन दैट केस इफ यू वांट एक अलग से रीड बनाना, आप बना सकते हो। इफ यू वांट कि एक चिप सेलेक्ट को आप रीड के साथ यूज करना, वो भी कर सकते हो। और एक चिप सेलेक्ट सिलेक्शन इनपुट के साथ भी काम करेगा। लेटर ऑन आई विल शेयर द सर्किट ऑफ रोम शेयरिंग, रोम इंटरफेसिंग, जिसमें हम CS2 को रीड की तरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, नाउ
Same the function table is there, 0 0 high impedance, 0 1 high impedance, 1 0, 1 इस पर है, 0 इस पर है, तो क्या काम होगा, सिर्फ रीड होगा। रोम है, सिर्फ रीड कर सकते हैं और कोई ऑपरेशन हम इस पे कर ही नहीं सकते। 1 1 के केस में अगेन हाई इंपेडेंस हो जाएगा, ये फिर से बंद हो जाएगा। ओके, इट कैन बी ऑफ सेम साइज, जैसे 128 रैम था तो 128 रोम भी हो सकता है। रैम जो है वो 512 हो सकता है, रोम 128 हो सकता है, दोनों 512 हो सकते हैं, दोनों 128 हो सकते हैं। साइज के ऊपर कुछ नहीं है, इट इज द सेम थिंग। आप मार्केट से 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB की रैम ले लो या पेन ड्राइव ले लो, वो आपकी विश है, जितनी भी आपको लेनी है। नाउ हो सकता है कि आपके पास 4 GB की एक मेमोरी ना हो, तो इन दैट केस आपको 2-2 GB की दो मेमोरी मिल जाएगी। आप 2-2 GB की दो मेमोरी लो और उससे आप 4 GB की एक बना लो। पॉसिबल है, हम ऐसा करते भी हैं कि अगर आपको 16 GB चाहिए, 16 GB नहीं मिल रही, 4-4 GB की 4 ले लो, 8-8 GB की 2 ले लो। ना इंटरफेसिंग में भी यही हो सकता है, मुझे टोटल मेमोरी चाहिए 2K, 2 KB, बट मेरे पास 2 KB की एक सिंगल चिप नहीं है, तो क्या होगा, आपने क्या किया, 512 बाइट्स, 512 बाइट्स की 4 चिप ली, 512 बाइट्स की 4 चिप अगर आप एक साथ लिखो रखोगे, देन इट विल बिकम 2 KB। 512 बाइट को अगर 4 चिप आप एक साथ कनेक्ट कराते हो, देन इट विल फॉर्म यू 2 KB ऑफ मेमोरी। बट अगर आप 4 चिप एक साथ कनेक्ट करोगे, कौन सी चिप पहली है, कौन सी दूसरी है, किस चिप में कहाँ डेटा है, कौन सा एड्रेस कहाँ है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन ओनली देयर एड्रेसिंग स्कीम। वो उसकी एड्रेसिंग स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर में, एग्जाम में आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है कि ये चिप्स दी हैं, इतनी चिप आपकी रैम है, इतनी चिप रोम है, इनका इंटरफेसिंग करो और मेमोरी मैप बनाओ। ओके, तो आई विल शो दैट आपको कैसे बनेगा। बिफोर दैट रोम के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मैंने बताया था, CS1 हाई होना चाहिए, CS2 लो होना चाहिए, तभी काम करेगा। यहाँ पर वही सारी चीज लिखी गई है, CS1 की वैल्यू 1, CS2 की वैल्यू 0 एंड सेम। कॉम्बिनेशनल सर्किट फॉर रोम, जैसा अभी रैम का पढ़ा था ऐसे ही रोम का है। 2:4 डिकोडर लगेगा, I0 I1, जो बताएगा कब क्या काम करना है। एंड यहाँ पर दो आपके पास और गेट लगेंगे जो डेटा को रीड करेंगे। इन दिस केस 0001 और 1011, अलग अलग 4 केसेस हैं, 4 केसेस में आप उनको रीड कर सकते हो। ओके, इस लॉजिकल सर्किट की कोई जरूरत नहीं है याद करने की, इसको छोड़ दीजिए। बस ये ब्लॉक डायग्राम है जो इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर क्वेश्चन आता भी तो आपको ब्लॉक डायग्राम ही बनाना है और यही एक पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रोम। टाइप्स ऑफ रोम, रोम इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ये तो आपको पता ही है, अभी बताया था मैंने। और टाइप्स ऑफ रोम कौन कौन से होते हैं, प्रोम, प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मींस रोम जब आपको मिलेगी तो ब्लैंक मिलेगी। जो सीडी आती है ना, ब्लैंक सीडी, वो प्रोम का जो एग्जांपल है। आप उसके अंदर खुद से एक बार एक काम, एक कोई प्रोग्राम या कोई डेटा आप लिख सकते हैं, उसके बाद वही डेटा आप बार बार उसमें रीड कर लेंगे। जो भी राइटिंग ऑफ डेटा है वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ होगा। सीडी की अगर हम बात करते हैं, जो एज अ डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज नहीं होता, उसमें लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है। लेजर टेक्नोलॉजी की हेल्प से सीडी में जो डेटा लिखा जाता है, सीडी बर्निंग बोलते हैं, अगर आपने सुना हो, ध्यान दिया हो, हमेशा बोलते हैं सीडी को बर्न करना है। तो बर्न करने का मतलब उसको जलाने का नहीं होता। द थिंग इज, उसके ऊपर, सीडी के ऊपर जो टॉप साइड पे एक फिल्म होती है, उस पर्टिकुलर फिल्म को लेजर बीम की हेल्प से बर्न करते हैं। बर्न करने का मतलब क्या है, उसमें पिट्स फॉर्म करते हैं, पिट्स मतलब गड्ढा, उसमें पिट्स फॉर्म करते हैं, और पिट्स की फॉर्म में डेटा जो है स्टोर किया जाता है। कहीं पर कैसा पिट है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, चाहे कोई भी किसी तरह का डेटा, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक, साउंड, वो सब डेटा उसमें बिट्स की फॉर्म में, और बिट्स बनेंगे पिट से, PIT। जो बिट होता है ना, बिट, बिट और बाइट, वो बिट्स की फॉर्म का डेटा पिट में स्टोर करेगा इन द केस ऑफ CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, नेक्स्ट इज EEPROM। EEPROM इज इरेजेबल प्रोम। अब आप इस केस में क्या कर सकते हो, इरेज करके दोबारा लिख सकते हो। कुछ टाइम पहले मार्केट में रीराइटेबल CDs एंड DVDs आ रही थी।
दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ ई प्रोम, बट वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई थी बिकॉज उसके ऊपर जो फिल्म है वो बार बार बर्न करने से खत्म हो जाती थी बहुत जल्दी। कई बार ऐसा होता कि लेजर टेक्नोलॉजी से जो लेजर ने डेटा बना रहा है उसमें पिट्स बना रहा है, वो कई बार 2 फिल्म 3 फिल्म तक एक साथ चला गया, कई बार वो एक ही लेयर पर खत्म हो गया, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। बट तो एग्जाम्पल है किसका, ई प्रोम का, इरेजेबल डिस्क जो होती थी, दैट आर एग्जाम्पल ऑफ ई प्रोम। नेक्स्ट इज डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, इसको कोई लेजर टेक्नोलॉजी या कुछ और किसी एक्स्ट्रा फीचर की हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इलेक्ट्रिकली इसको इरेज कर सकते थे। एग्जाम्पल इज योर पेन ड्राइव। ओके, पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं जैसे आप, उस वही सेम मेथड है इसका, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इसको इरेज कर सकते हैं। सभी नॉन वॉलेटाइल होती हैं, पेन ड्राइव की कॉस्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CD DVD। ओके, क्लियर हुआ। रोम्स जो होती हैं वो रैम से सस्ती होती है। अगर आप रैम देखेंगे, रैम मिलेगी 2000 रुपये की, पेन ड्राइव आपको मिल जाएगी 500 रुपये की। सो रोम की कॉस्ट रैम से कम होती है। मोर ओवर, रोम का जो हार्डवेयर होता है वो भी रैम से कम क्वालिटी का रहता है, बिकॉज रैम को आपके कंप्यूटर के साथ ऑल टाइम रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, इसलिए वो अच्छे हार्डवेयर से और रिलायबल हार्डवेयर से बनाया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो होती है वो हाई स्पीड प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है, प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी का अगर आप एग्जांपल देखते हैं, देन बायोस, BIOS, बायोस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लैश मेमोरी। बायोस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, बट मैक्सिमम लोग उसमें को ध्यान ही नहीं देते। आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, प्रॉपर शटडाउन हो जाता है, 2 महीने तक आप उसको बंद करके उसकी सारी वायर्स निकाल के रख दीजिए, सब कुछ अलग कर दीजिए, हार्ड ड्राइव अलग, मतलब उसको एक एक पार्ट को डिसमेंटल करके रख दीजिए। उसके बाद जब आप उसको अगेन जो है असेंबल करेंगे, ऑन करेंगे, कंप्यूटर की डेट वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, जो उस दिन होनी चाहिए थी वही होगी, जो वॉलपेपर आपने सेट किया था वो वही रहेगा, कुछ कंडीशंस जो सेटिंग्स हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, कुछ चेंज नहीं होगा, पासवर्ड्स वहीं के वहीं रहेंगे ना। वो सारी चीज़ें कैसे मेंटेन होती हैं, ये सारी चीज़ें बायोस से मेंटेन होती है। जहाँ से आपने बूट करना है, जो जिस चीज़ का एड्रेस है, जिस फोल्डर का जो नाम रखा था, जैसे भी रखा था, वो सब बायोस मैनेज करेगा। बेसिक बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो आपके सिस्टम के टोटल इनपुट आउटपुट को मेंटेन करता है। फ्लैश मेमोरी एक चिप होती है, एक IC की तरह बेसिकली, उसके अंदर उस प्रोग्राम को लिखा जाता है एंड दैट इज स्टोर्ड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर वो कनेक्टेड होती है। बायोस के साथ एक सेल सेल होता है ना, बटन सेल की तरह एक सेल लगता है जो उसको पावर सप्लाई देता रहता है, कंटिन्यूसली पावर सप्लाई देता है। ओके, मोर ओवर, जो भी बायोस की कुछ बेसिक फाइल्स हैं, वो फाइल्स को वो स्टोर करके रखता है, और जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो सबसे पहले उन फाइल्स को मेमोरी पे डालता है। ओके, सो बायोस किस तरह की मेमोरी में लिखा जाता है, फ्लैश मेमोरी में। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, IC की तरह होती है, बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह काम करती है वैसे तो, बट ये IC होती है देखने में, पेन ड्राइव IC नहीं होती, ये IC होती है। एंड इसको भी हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल बना सकते हैं। ओके, इट कैन बी राइट टाइम विद इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और इरेजेबल। ओके, इन फ्लैश मेमोरी एंटायर मेमोरी कैन बी इरेज्ड इन फ्यू सेकेंड्स by using electric erasing technology। by using electric erasing technology means क्या मतलब हुआ इसका, फ्लैश मेमोरी एक तो बहुत हाई स्पीड होती है, कुछ सेकंड में पूरी मेमोरी को फ्लैश करते हैं, और फ्लैश भी कैसे करेंगे, इरेज भी कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। ओके, नाउ फीचर्स देखिए, रोम मेमोरीज के फीचर्स देखिए। रोम एक बार लिख सकते हैं, रीड टाइम कितना है, नैनो सेकेंड, एंड नंबर ऑफ राइट साइकिल अलाउड 1, एक बार आप लिखेंगे बस। प्रोम, इसको आर्स में लिख सकते हैं। प्रोम को अगर मतलब आपको प्रोग्राम करनी है, रैम ब्लैंक है तो प्रोग्राम तो हो जाएगा, बट बहुत टाइम लगेगा, आर्स, इट विल टेक आर्स। ओके, रीड टाइम नैनो सेकेंड, रीड टाइम तो सबका नैनो सेकेंड्स में ही आएगा। नंबर ऑफ साइकिल्स अलाउड 10, मतलब एक प्रोम को आप 10 बार लिख सकते हो, 10 बार उसमें आप डेटा लिख सकते हो। ई प्रोम इरेजेबल, मिनट्स में डेटा लिखा जाएगा, और तकरीबन 100 टाइम्स डेटा लिख सकते हैं। डबल ई प्रोम यानी कि पेन ड्राइव का एग्जांपल है,
मिली सेकेंड्स में आप लिख सकते हो कोई भी डेटा फटाफट, बहुत हाई स्पीड होती है इसकी। नैनो सेकेंड में रीड कर लेते हैं, रीड भी जल्दी कराता है। 1000 टाइम्स इसको यूज किया जा सकता है। थाउजेंड्स का मतलब ऐसा नहीं कि बस 1000 बार ही यूज होगी, 1001वीं बार ये यूज नहीं होगी। मतलब जो यूज की अगर हम बात करते हैं राइट साइकिल की, कितनी बार आप इसमें और रीड राइट बार बार करेंगे, तो वो लगभग 1000 नंबर ऑफ टाइम्स आप कर सकते हो, वेयर एज इन रोम इट इज ओनली 1 टाइम। Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.